First 7 questions are related to true, false, not given. Let's check out the statement of first question. Polar bears suffer from various health problems due to the buildup of fat under their skin. जो पॉलर बियर है वो बहुत सारी प्रॉब्लम के साथ सफर कर रहे हैं क्योंकि उनके जो नीचे फैट है वो जमा हो जाता है. सो यहाँ पे we will start reading from this line. One reason for this is that they have up to 11 centimeter of fat underneath their skin. उनकी स्किन के नीचे जो 11 सेंटीमीटर फैट जो है वो जमा हो जाता है. उसका जो रीजन है वो क्या है? Underneath means below. When you read, you also work on your vocab. So instead of below, what word you can use? Underneath. Humans with comparative levels of adipose tissues would be considered obese and would be likely to suffer from diabetes and heart diseases. अब उन्होंने comparison किया है polar bear का human के साथ. Human जो है वो ये वाली जो diseases है उसके साथ suffer करते हैं. Yet the polar bear experiences no such consequences. लेकिन ऐसा कुछ भी है जो वो polar bear के साथ नहीं होता. So definitely the answer of this statement is false. Why? Because we have find the contradictory words. In the question they are asking कि they are suffering from the diseases. लेकिन हमें पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है कि there is no such consequences. ऐसा कुछ भी नहीं होता. Okay, let's move towards second question. The study done by Liu and his colleagues compared different groups of polar bears. अब क्या जो इन्होंने स्टडी की है लियो ने उसने इस जो polar bear को different groups के साथ कंपैरिजन किया है. Let's see. They compared the genetic structure of polar bears with that of their closest relatives from a warmer climate, that is the brown bear. So उन्होंने polar bear को brown bear के साथ कंपैरिजन किया है. Now ये जो हमारे पास दो चीजों का कंपैरिजन है क्या ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ polar bear के साथ कवर हो रहा है? नो, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप अगर polar bear की बात करें तो देयर आर मेनी कैटेगरीज. ब्लैक बियर है हमारे पास, ब्राउन बियर है, polar bear है, सन बियर है और स्लॉथ बियर है. यहाँ पे दो कैटेगरीज और भी हैं. सो सिर्फ जो है वो दो कंपैरिजन किए गए हैं polar bear एंड ब्राउन बियर. दैट्स व्हाई इसका भी आंसर आ जाएगा फॉल्स. व्हाई? बिकॉज डिफरेंट ग्रुप्स के साथ उन्होंने कंपैरिजन नहीं किया, उन्होंने उसके ही रिलेटिव के साथ कंपैरिजन किया है, रिलेटिव्स के साथ. सो दैट्स व्हाई द आंसर इज फॉल्स. Liu and colleagues were the first researchers to compare polar bears and brown bears genetically. क्या जो है ल्यू एंड कोलीग्स जो है दे आर द फर्स्ट रिसर्चर्स जिन्होंने की polar bear और brown bear को कंपेयर किया है. If you read the whole paragraph, you will not find any information related to this कि वो फर्स्ट रिसर्चर है या नहीं है. So the answer of this question is not given. अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपैरिजन है बट विद द polar bear एंड द brown bear. बट क्या ये फर्स्ट रिसर्चर है? दैट स्टेटमेंट इज नॉट गिवन. Polar bears are able to control their levels of bad cholesterol by genetic means. क्या वो अपना bad cholesterol जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं? We will start reading from this. Liu and his colleagues found the polar bears had a gene known as APOP, which reduces the level of low density lipoproteins, a form of bad cholesterol. अब उन्होंने बोला है कि यस polar bear में एक जो जीन है वो फाउंड की जाती है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है? कम करता है, रिड्यूस कर देता है उसके लेवल को. सो डेफिनेटली द आंसर इज ट्रू बिकॉज वी हैव फाउंड द सिमिलर स्टेटमेंट. जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है वही उन्होंने पैराग्राफ में दिया हुआ है और जो हमारे सिनोनिम्स है वो भी मैच करे हैं. एबल टू कंट्रोल द बैड कोलेस्ट्रॉल, यस ये जो जीन है वो इसका लेवल जो है वो रिड्यूस कर देता है. सो द आंसर इज ट्रू. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन. फीमेल polar bears are able to survive for about 6 months without food. क्या जो फीमेल polar bear है वो बिना खाए पिए 6 मंथ रह सकती है? This process results in about 6 months of fasting. ये जो process है इसमें जो है वो 6 month fast जो है वो रख सकते हैं where the female bears have to keep themselves and their cubs
alive, depleting their own calcium and calories reserves. जो उनके पास कैल्शियम और कैलोरी रिजर्व है उसी से काम चला के 6 मंथ का वो फास्ट रख के भी जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। यही उन्होंने हमें क्वेश्चन में पूछा है किस द synonyms are matched, so the answer is true. The same information is given. फास्टिंग, फास्ट मतलब फास्ट रखना मतलब आपको सारा दिन कुछ खाना पीना नहीं है। सो सिमिलरली उसको भी 6 मंथ का एक तरह से फास्ट ही हो जाता है क्योंकि वो कुछ खाती पीती नहीं है। सो द आंसर इज ट्रू। Then it was found that the bones of female polar bears were very weak when they came out of their dens in spring. अब जब वो स्प्रिंग में अपने डेन से बाहर आती है तो उसकी जो बोन्स है क्या वो बहुत वीक हो जाती है? Their bones remain strong and dense. इंफॉर्मेशन गिवन है डेंस के बारे में, लेकिन लास्ट लाइन हमें क्या बता रही है? डिस्पाइट दिस देयर बोन्स रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड डेंस। ये सारा कुछ होने के बावजूद भी उसकी जो बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग रहती है। इवन दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर इन दिस लाइन, देयर वॉज नो एविडेंस ऑफ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, कि उनकी जो बोन्स है वो खराब होने का यहाँ पे कोई भी लॉस होने का यहाँ पे कोई एविडेंस शो नहीं है। So definitely the answer is false. Next question is, polar bears' mechanism for increasing bone density could also be used by people one day. अब जो polar bear की बॉडी का मैकेनिज्म है, बोन डेंसिटी जो स्ट्रॉन्ग रहती है, क्या वो बाकी लोग भी यूज कर सकते हैं? एक दिन ऐसा आएगा कि बाकी भी यूज करेंगे। If the mechanism of the bone remolding in the polar bears can be understood, अगर हम उसको अंडरस्टूड कर लेते हैं कि ये सब कैसे होता है, many humans and even astronauts could potentially benefit, उनको भी बेनिफिट मिल सकता है। It means कि कुछ जो है वो अडेप्टेशन कर सकते हैं। So the answer is true. क्यों? क्योंकि हमारे synonyms जो है वो मैच हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला है पीपल, कौन सी पीपल की बात हो रही है? ह्यूमंस की और एस्ट्रोनॉट्स की, ठीक है। और उन्होंने बोला कि क्या ये वन डे हो सकता है? could potentially benefit. So definitely the synonyms are matched. Okay, now we are moving towards question from 8 to 13. These questions are related to blanks. Blanks are a little bit easy, so let's see. People think of bears as unintelligent and dash. अब we will start reading from this. इसका जो आंसर है वो हम देखेंगे। Bears on the other hand seem to be preserved as stupid and in many cases violent. Stupid means unintelligent, कि वो intelligent नहीं है, और बहुत सारे cases में violent. So violent is our answer. हम इस blank में violent लिखेंगे क्योंकि unintelligent जो है उसका synonym stupid हमें given है। Then however, this may not be correct, पर ऐसा नहीं है। For example, in Tenachie Zoo, a bear has been seen using a branch as a dash. अब जू में क्या एक बियर ने क्या देखा कि वो ब्रांच का जो यूज है वो कैसे कर रहा था? एज अ डैश। अभी हमें डैश जो है वो फाइंड आउट करनी है। अ मेल बियर कॉल्ड गोगो इन Tenachie Zoo, Osaka has even been observed making use of a tool to manipulate his environment. अब उन्होंने फर्स्ट लाइन में बोला था कि वो अनइंटेलिजेंट है, लेकिन however आ गया। however मीन्स कि अब जो इंफॉर्मेशन है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। दिस में नॉट बी करेक्ट, ऐसा नहीं है। अब उसकी जो एग्जाम्पल है वो जू की ली गई है, तो हमें ये पता करना था कि उस ब्रांच को वो कैसे यूज कर रहा है? as a tool. So tool is the answer. This allowed him to knock down some dash. अब ये tool का यूज करके उसने क्या किया? कुछ चीजें जो है knock down some dash. कौन सी डैश? किस चीज को उसने यूज लिया है और गिराया है? The bear used a tree branch on a multiple occasions to dislodge a piece of meat hung out of his reach. जो उसकी रीच में मीट नहीं है उसको लेने के लिए उसने ब्रांच का यूज किया है एज अ टूल। सो डिसलॉज का मतलब होता है रिमूव, ठीक है। उस चीज को रिमूव करने के लिए उसने एज अ टूल इसको जो है वो यूज किया है। सो जो 10th है उसमें आएगा मीट,
कि मीट लेने के लिए उसने ब्रांच का यूज कैसे किया है, एज अ टूल. अ polar bear worked out a method of reaching a platform where dash was located. अब polar bear ने एक मेथड यूज किया टू रीच समवेयर. अब वो समवेयर क्या है, हमें वो फाइंड आउट करना है. A calculated move by a male bear involved running and jumping onto the barrels in the attempt to get in. Photographers standing on a platform 4 meters height. एक मेल पॉलर बियर ने क्या किया, जो एक फोटोग्राफर है जो कि 4 मीटर हाइट पे वो खड़ा था, उसको पहुंचने के लिए उसने रनिंग एंड जंपिंग का यूज किया. सो द आंसर इज फोटोग्राफर. जो पॉलर बियर था उसने किसके पास पहुंचना था, फोटोग्राफर की जो लोकेशन है उसके पास. Polar bears have displayed behavior such as conscious manipulation of objects and activities similar to a dash. अब polar bear का जो behavior है वो एक conscious manipulation दिखाता है किसकी, objects की, activities की, similar to dash. वो एक्टिविटीज और ऑब्जेक्ट्स किसके साथ सिमिलर कर रहे हैं, किसके साथ मैच हो रहे हैं, हमें वो फाइंड आउट करना है. फॉर एग्जाम्पल, MS observed bears putting objects in a pile and then knowing them over in what appeared to be a game. वो ऑब्जेक्ट्स किसके साथ मैच हो रहे हैं, जैसे कि वो एक गेम खेल रहे हो. सो द गेम इज द आंसर. दोबारा से एक बार देख लो कि इस ब्लैंक में उन्होंने पूछा है कि जो पॉलर बियर का बिहेवियर है वो किस एक्टिविटी के साथ मैच हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी वो प्ले कर रहे हैं वो किस चीज के साथ मैच हो रहा है. तो इस लाइन में द इंफॉर्मेशन इज गिवन कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो गेम खेल रहे हैं, वो पाइल्स का ऑब्जेक्ट्स का ऐसे यूज कर रहे हैं जैसे कि वो एक गेम खेल रहे हैं. सो गेम इज द आंसर. देन they may make movements suggesting dash if disappointed when hunting. अब जब वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं हंटिंग के टाइम में, तो वो कौन सी कौन सी मूवमेंट है वो करते हैं जो कि हमें कुछ सजेस्ट करती है. क्या चीज हमें सजेस्ट करती है, एज अ इमोशन. While the evidence is once again anecdotal, many bears have been seen to hit out at ice and snow, seemingly out of frustration when they have just missed out on a kill. जब वो शिकार करते हैं और उनका शिकार मिस हो जाता है तो अपनी फ्रस्ट्रेशन शो करने के लिए वो अपने आप को हिट आउट करते हैं आइस और स्नो के साथ. सो इनसे हमें क्या पता चलता है कि वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं. सो द आंसर इज फ्रस्ट्रेशन. हमें उनकी जो ये मूवमेंट है वो क्या शो करती है, उनकी फ्रस्ट्रेशन शो करती है. ये मूवमेंट कौन सी मूवमेंट, हिट आउट एट आइस एंड स्नो. ओके, और हमें वो क्या सजेस्ट करिए, फ्रस्ट्रेशन. कब सजेस्ट करिए, इफ डिसअपॉइंटेड व्हेन हंटिंग. इसका सिनोनिम कौन सा है, when they have just missed out on a kill. So blanks जो है वो आपको synonyms मैच करने हैं. अगर आपके आगे पीछे के synonyms मैच हो जाते हैं तो वहीं पे आंसर है. जैसे कि 12th नंबर पे उन्होंने ऑब्जेक्ट्स बोले थे कि उनका बिहेवियर जो है वो हमें कुछ दिखाता है कि वो ऑब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज को किसी चीज के साथ मैच कर रहे हैं. अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि पुटिंग ऑब्जेक्ट्स इन अ पाइल, वो ऑब्जेक्ट्स को पाइल में डाल रहे हैं एंड नॉकिंग देम ओवर इन व्हाट अपीयर टू बी अ डैश. और उनके साथ ऐसा वो खेल रहे हैं, ऐसा उनको नॉकडाउन कर रहे हैं कि जैसे एक गेम लग रही है. सो ऑब्जेक्ट्स जो है यहाँ पे भी मैच हो गया. तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो अगर आप ब्लैंक सॉल्व कर रहे हो तो उसके जो सिनोनिम्स है वो मैच हो जाए. सिनोनिम्स का ध्यान रखना है. एज इट इज वर्ड अगर मिल गया तो कई बार क्या होता है कि वो एक ट्रैप होता है. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे इसकी और ब्लैंक्स की, कैम्ब्रिज की और सीरीज की, इस चीज को आप और इसके बारे में आपको क्लैरिटी हो जाएगी. Okay, now let's move towards another questions. Next questions from 14 to 20. These are list of headings. And these questions, headings are given to you and you have to match these headings with the particular paragraph. For example, this is the paragraph A. First, you need to read all the headings and need to underline all the keywords. After this, you need to identify which heading belongs to paragraph A. जब हम इसको करेंगे तो और क्लैरिटी हो जाएगी. बट इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्राइब द मेथड की मैं पूरा पैराग्राफ आई एम नॉट गोइंग टू रीड कि क्या है पूरा पैराग्राफ, उसकी समरी कंक्लूजन क्या है. मैं इस वीडियो में आपको आंसर्स जो है वो लोकेट करवा रही हूँ
सो अगर आपको एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए जहां पे मैं जो पैराग्राफ है वो डिस्क्राइब करूं, देन यू कैन राइट इट ऑन द कमेंट सेक्शन। 17 बुक की जो है मैंने वो आपको ट्रांसलेशन जो है वो दी है, लेकिन इस वीडियो में आई एम जस्ट गोइंग टू कवर द आंसर्स। सो मैं उतना ही पैराग्राफ आपको समझाऊंगी जहां पे हमारा आंसर जो है वो लोकेट हो रहा है। सो लेट्स सी कि 14 जो है उसका क्या आंसर है। पैराग्राफ ए जो है उसका हम कौन सा इसमें से लिस्ट ऑफ हेडिंग उठाएंगे। फोर्थ लिस्ट ऑफ हेडिंग, अ सिंगल सर्टेनिटी अमंग अदर लेस डेफिनेट फैक्ट। उन्होंने बोला है अन्य कम निश्चित तथ्यों के बीच एक निश्चितता कि जो एक सिंगल सर्टेनिटी है वो जो अदर्स के साथ उनको अगर हम कंपैरिजन करें तो उसके जो फैक्ट्स है वो हमारे पास बहुत ही कम है। इसका क्या मतलब हुआ, सपोज करो एक ए एंटिटी है और एक बी एंटिटी है। अब जो ए के हमारे पास फैक्ट्स है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू बी, तो हमें ये जो है इसका फाइंड आउट करना है इस पैराग्राफ से। सो लेट्स सी, द इवैल्यूएशन ऑफ pyramid form has been written and argued about centuries. However, there is no question that as far as Egypt is concerned, it began with the one monument to one king designed by one brilliant architect, the step pyramid, Djoser Square. अब इसमें उन्होंने बोला है कि जो इजिप्ट है वो एक वन मॉन्यूमेंट है जो कि वन किंग ने डिजाइन किया था। ठीक है, ये किसने बोला है, एक आर्किटेक्ट ने बोला है जिसका नाम उन्होंने दिया हुआ है। सो इसके पास हमारे पास ज्यादा फैक्ट्स नहीं है इसकी हिस्ट्री को लेके, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सिंगल सर्टेन अमंग अदर्स लेस डेफिनेट फैक्ट, कि हमारे इतनी हमें इसके बारे में नहीं पता क्योंकि एक ही आर्किटेक्ट ने जो बताया हुआ है वो इस पैराग्राफ में गिवन है। आप जो हो वो हिंदी और पंजाबी में इसको रीड आउट कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। आई एम नॉट गोइंग टू ट्रांसलेट वर्ड बाय वर्ड, तभी मैंने ये रिटर्न लिखा हुआ है। अगर आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो आप इसको भी पढ़ सकते हो। Seventh statement is an idea for changing the design for burial structures. Burial structures के जो डिजाइन थे उसका जो आइडिया था उसको चेंज करने का वो किसने दिया था? Djoser was the first king of the third dynasty of Egypt and the first to build in stone. जो जॉजर था उसको फर्स्ट टाइम जो है वो स्टोन में दफनाया गया था। Prior to Djoser's reign, tombs were rectangular monuments made of dried clay brick. नाउ इस पैराग्राफ में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि उससे पहले जो डिजाइन था वो सिर्फ ब्रिक का, क्ले का था, लेकिन इसका जो था वो स्टोन का था। सो डेफिनेटली ये जो था ये फर्स्ट किंग था जिसके जो आइडिया वो चेंज हुआ था जो स्ट्रक्चर्स को लेके। सो द आंसर ऑफ 15 इज 7th व्हिच इज रिलेटेड टू पैराग्राफ बी। सेकंड इज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर दोज इन्वॉल्व, जो कि उस काम में इन्वॉल्व थे उसके लिए जो टास्क था वो डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट टास्क। The weight of the enormous mass was a challenge for the builders who placed the stone at an inward incline in order to prevent the monuments breaking up. अब उसका जो वेट था वो ही एक चैलेंज था बिल्डर्स के लिए। सो डेफिनेटली द आंसर ऑफ दिस इज सेकंड, जो 16 का आंसर है सेकंड। हमारे पास स्टेटमेंट है कि जो लोग उस काम को कर रहे थे उसके लिए कोई काम डिफिकल्ट था, एक डिफिकल्ट टास्क। वो क्या है, यहाँ पे हमें आंसर मिल गया। इस पैराग्राफ में ये डिफाइंड है कि जो वेट है वही एक चैलेंज था बिल्डर्स के लिए। सो द आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट इज एन ओवरव्यू ऑफ एक्सटर्नल बिल्डिंग्स एंड एरियाज। हमें एक्सटर्नल बिल्डिंग और एरियाज कैसी दिखती थी उसका एक ओवरव्यू चाहिए। So deep paragraph में ये information given है। The complex in which it was built was the size of the city in the ancient Egypt and included a temple, courtyard, shrines and living quarters of priests. It covered a region of 16 hectares surrounded by a wall of 10.5 meters high. अब यहाँ पे हमें ओवरव्यू मिल गया कि वहाँ का जो गुरुद्वारा था या वहाँ के जो बिल्डिंग्स थे, वहाँ के जो टेम्पल्स थे वो कैसे दिखते थे। ठीक है, और अगर थोड़ा नेक्स्ट पैराग्राफ भी आप इसको भी रीड करते हो तो उसकी जो वॉल्स थी, उसका जो डोर था, उसकी एंट्रेंस कैसी थी, तो वो इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे गिवन है। सो दैट्स व्हाई जो नंबर 17 है उसका पैराग्राफ डी का आंसर हमारा मैच हो रहा है विद द लिस्ट ऑफ हेडिंग 5th। Then the area and the artifacts within the pyramid itself. अब pyramid के अंदर जो है वो कौन से एरियाज, आर्टिफैक्ट्स, क्या क्या चीजें यूज हुई वो हमें बताना है। सो ये इंफॉर्मेशन जो है वो पैराग्राफ ई में गिवन है।
The burial chamber of Tom, where the king's body was laid to rest, was dug beneath the base of pyramid, surrounded by the vast maze of long tunnels that had rooms off to discourage robbers. अब उन्होंने ये बताया है कि जो बेरियल का जो चैम्बर है उसके अंदर सिर्फ बॉडी नहीं रखेगी, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, रॉबर से प्रोटेक्ट करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें मिली. सो आप ये वाला पैराग्राफ अच्छे से रीड कर सकते हो. मैंने इसकी ट्रांसलेशन भी गिवन है आपको, आप वो भी रीड कर सकते हो. तो इस पैराग्राफ में आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से जो चीजें हैं वो रखेगी. 40,000 जो है वेसल्स वो वहां से मिले हैं ताकि रॉबर्स जो है वो अंदर नहीं आ सके. सो ये किसके साथ मैच हो रहा है? एरिया एंड आर्टिफैक्ट्स विद इन द पिरामिड इटसेल्फ. पिरामिड के अंदर जो चीजें मिली हैं वो क्या क्या है वो हमें पैराग्राफ ई बता रहा है. So 18 का आंसर है नंबर 1. Next is an incredible experience despite the few remains. Few remains जो remains के अलावा भी जो incredible experience है वो क्या है, वो कहाँ कौन से पैराग्राफ में हमें पता चल रहा है. So George's grave goods and even his body was stolen at some point in the past, and all archaeologists found were a small number of his valuables overlooked by the thieves. These were enough left throughout the pyramid and its complex, however, to astonish and amaze the archaeologists who excavated it. अब देखो क्या इन्फॉर्मेशन है कि उसकी बॉडी जो है वही स्टोलन हो, उसकी बॉडी ही कोई चुरा के ले गया था. पता नहीं लोग जो है ना क्या क्या वो चीजें करते हैं. इमेजिन जो है वही करना वेरी डिफिकल्ट. अब कोई मर गया है, उसकी बॉडी उन्होंने क्या करनी है. सो चलिए समहाउ इस पैराग्राफ में उस बॉडी के साथ और भी बहुत सारे जो है वो चीजें मिली जो कि एस्टॉनिश और अमेज करने वाली थी, हैरान करने वाली थी. सो हमारे पास जो लिस्ट ऑफ हेडिंग था वो ये था एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस. अभी इस लाइन में बताया हुआ है कि बहुत सारी चीजें जो है वो हैरान कर देती है. सो दिस इज एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस. सो वहां पे पिरामिड में बॉडी जो है वो स्टोलन हो गई थी, उसके अलावा बहुत ही वैल्यूएबल चीजें जो है वो भी वहां से मिली है. सो डेफिनेटली द आंसर इज नंबर 8. Last question of this statement is a pyramid design that others copied. ऐसा pyramid का डिजाइन जो कि बाकी जो है वो कॉपी करेंगे या कॉपी किया उन्होंने. The step pyramid was a revolutionary advance in architecture and become the archetype which all other great pyramids builder of Egypt would follow. अब ये वाला जो है step pyramid, इसका जो डिजाइन था वो एक revolutionary डिजाइन था जो कि बाकी क्या करेंगे, कॉपी करेंगे. So definitely the answer is G. ठीक है, जी का आंसर क्या है हमारे पास 6. 21 to 24 questions are related to blanks. Again, you have to choose one word only. Let's read the first one. The complex that includes the step pyramid and its surrounding is considered as to be as big as Egyptian dash of the past. अब हमें pyramid जो है वो कंपेयर करना है किसके साथ, इजिप्ट का कोई चीज है उसके साथ, कि जितना बिग वो चीज है उतना ही हमारा pyramid है. So let's read this line. The complex in which it was built was the size of a city in ancient Egypt. कि जो पुराना इजिप्ट था उसके कंपैरिजन उसकी जो सिटी थी जितनी वो बड़ी थी उतना ही ये जो pyramid है इसका भी साइज है. तो definitely the answer is city here. Next is the area outside the pyramid included accommodation that was occupied by dash. अब जो pyramid का outside का जो एरिया है उसमें कौन रहता था, accommodation houses कि वहां पे कौन लिव करता था, and included a temple, courtyard, shrines and living quarters. अब living quarters जो है वो हमें synonym मिल गया है accommodation का. For the priest वहां पे priest रहते थे, so यहाँ पे 22 का आंसर आ जाएगा priest. Next, a wall ran around the outside of the complex and a number of false entrances were built into this. In addition, a long dash encircled the wall. अब वहां पे उन्होंने बोला है कि एक वॉल आउटसाइड बिल्ड की गई ताकि रॉन्ग एंट्रेंस ना हो, लेकिन उस वॉल के अलावा भी जो है वो कोई चीज अनसर्कल जो है वो की गई वॉल को, तो हमें वो चीज पता कर. द एंटायर वॉल वॉज देन ringed by a trench 750 meters long and 40 meters wide. ट्रेंच क्या होता है? ट्रेंच एक होता है जैसे हम मिट्टी को खोद के कोई वहां से जाने का रास्ता बनाते हैं,
जैसे कि सपोज करो ये सिटी है, तो हमने इतना जो है वो ये जो चीज है, जैसे आपने रिवर देखी होगी, रिवर जो है वो एक ट्रेंच की तरह होती है, यहाँ पे सारा पानी होता है, आसपास जो है उसका वो किनारा होता है, सो दिस इज अ ट्रेंच। अब ये क्यों लगा दिया गया, ये इसको उन्होंने सर्कल जो करके वो खोद दी गई ताकि उस जगह पे कोई एंट्री ना हो सके। अब ये इस चीज को क्रॉस करने के लिए या तो हमें ब्रिज चाहिए या फिर स्टेयर्स चाहिए ताकि हम उस चीज को क्रॉस कर सके। So this is a trench. अब trench, so trench is the answer of 23rd. Hope आपको trench जो है वो समझ आ गया होगा. Now next one is, as a result, any investors who had been invited were clearly prevented from entering the pyramid grounds unless they knew the dash of the real entrance. अब कोई भी visitors जिसको कि invite नहीं किया गया, अगर उसने entry मार ली तो वो वहां से बाहर नहीं जा सकता अनलेस दे न्यू द डैश ऑफ द रियल एंट्रेंस। अब कोई एक चीज है, अगर वो उसको पता है तो वो जा सकता है, तो हमें वो पता करना है, ये कोई लॉक हो सकता है, कोई की हो सकती है, कोई कौन सी चीज है कि अगर वो चीज हमें पता है तो हम बाहर जा सकते। इफ समवन विश टू एंटर ही और शी वुड हैव नीडेड टू नो इन एडवांस हाउ टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द ट्रू ओपनिंग इन द वॉल। वो वॉल जो है, क्योंकि वो सर्कल वॉल थी, तो वो कहां से ओपन होएगी, अगर ट्रू लोकेशन हमें पता होएगी तभी हम वहां से बाहर जा सकते हैं। सो 24 का आंसर हो जाएगा लोकेशन। Okay, let's move towards next questions. Now 25th and 26th, these questions are related to multiple choice. आपको 5 choices दी गई हैं और ये question है which two of the following points does the writer make about the king Georges? कौन से 2 पॉइंट जो है वो राइटर ने हाईलाइट किए हैं about king? Okay, सो ये बी पैराग्राफ में एक तो इसका पॉइंट दिया हुआ है, Georges is thought to have resigned for 19 years, but some historian and scholars attribute a much longer time for his rule, owing to the number and the size of the monuments he built. अब उन्होंने बताया है कि जो जॉर्जर है वो 19 साल उसने राज किया, लेकिन कुछ हिस्टोरियन हमें ये भी बताते हैं कि इससे भी ज्यादा उसने जो है वो वहां पे अपनी किंगडम जो है वो चलाई है। क्यों ऐसा बताते हैं, क्योंकि उनका जो साइज है, मॉन्यूमेंट्स उसने बिल्ड किए, उसके हिसाब से वो जो है वो एस्टिमेशन लगा रहे हैं। सो देयर इज अ डिसएग्रीमेंट कंसर्निंग द लेंथ ऑफ द रिजाइन। ये जो पैराग्राफ है ये इसके साथ मैच होता है। बी स्टेटमेंट में उन्होंने बोला है कि क्या डिसएग्रीमेंट है कि जो उसका राज है वो कितने टाइम पीरियड तक चला। अब यहाँ पे हमें 19 तो दिया हुआ है लेकिन बट आ गया, मींस वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि कुछ जो है वो ये है स्कॉलर्स जो ये बोल रहे हैं कि नहीं 19 नहीं है, इससे भी ज्यादा है। सो 25th का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक तो बी। अभी हमें क्योंकि 2 पॉइंट्स पता करने हैं तो एक और हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। नाउ अभी जो फर्स्ट हमें आंसर बी था वो हमें मिला था पैराग्राफ बी के अंदर, ठीक है। तो आपको बाकी के पैराग्राफ्स अच्छे से पढ़ने हैं। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये साइमल्टेनियसली चलते हैं, लाइक आपको ब्लैंक्स भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी है और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको साथ में ही अपने माइंड में रखना है कि यस कहीं मेरे को वो तो नहीं मिल रहा। फिर नेक्स्ट जो हमें पॉइंट मिल रहा है डी, वो मिल रहा है पैराग्राफ एफ के अंदर। The question is, a few of his possessions were still in the tomb when archaeologists found it. अब कुछ possessions अभी भी वहां पे हैं, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है F पैराग्राफ में, all archaeologists found were a small number of his valuables overlooked by the thief. जो thief ने चुराया उसमें से small number उनको मिल गया है, तो उनके हिसाब से अभी भी कुछ चीजें जो है वो वहां पे है। Yes, so D is the answer. अभी ये क्वेश्चन जो बाकी के हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, ए को और सी को इलिमिनेट करना है। अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही तो आप इलिमिनेट करोगे तो डेफिनेटली आपके पास करेक्ट आंसर बच जाएगा। Okay, hope this one is also clear. Okay, now let's do passage 3 of Cambridge. 16 questions are from 27 to 30. Now these questions are related to multiple choice questions. You have one question to answer and 4 options from which you need to choose. So if I talk about question number 27, then it is the first paragraph tells us about. You have to read this paragraph and need to check out what is the summary and what the points this paragraph are saying. But because there are
4 options, so you need to analyze all the 4 options. आपको अच्छे से इसको रीड करना है, कीवर्ड्स उठाने हैं. जो इन्फॉर्मेशन आपको पैराग्राफ 1 में नहीं मिली, यू नीड टू क्रॉस दैट, उसको क्रॉस करो और देन आपके पास जो है वो लेफ्ट आउट आंसर होएगा आपका करेक्ट आंसर. अब 27 का आंसर है बी. सो लेट्स सी कि ये क्या लिखा है. द एक्सटेंट टू विच AI विल आफ्टर द नेचर ऑफ द वर्क दैट पीपल डू. उन्होंने बोला कि जो लोग काम करते हैं AI की लिमिट में, उनको जो है अपना जो काम है वो एक्सटेंट मीन्स उनको चेंज करना पड़ेगा. द एक्सटेंट टू विच AI विल आफ्टर, तो उनका काम AI करेगा. सो लोगों को अपने काम का जो नेचर है उसके बारे में उनको देखना पड़ेगा. ओके, पैराग्राफ क्या बोल रहा है. अकॉर्डिंग टू द लीडिंग बिजनेस कंसल्टेंसी, 3/14 ऑफ द ग्लोबल वर्कफोर्स विल नीड टू स्विच टू अ डिफरेंट ऑक्यूपेशन विद इन द नेक्स्ट 10 to 15 years, and all workers will need to adapt as their occupations evolve alongside increasingly the capable machines. जो मशीन्स पे काम हो रहा है, क्योंकि मशीन्स जो है वो आ गई हैं, तो जो 3 से 14% जो पीपल है उनको अपनी ऑक्यूपेशन चेंज करनी पड़ेगी. सिमिलर स्टेटमेंट जो है वो बी में दी गई है, सिमिलर ही हमें पैराग्राफ में मिली है. सो इसका आंसर है हमारा 28th क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द सेकंड पैराग्राफ, व्हाट इज स्टेला पचीडीज व्यू ऑफ द नॉलेज इकोनॉमी. अब जो सेकंड पैराग्राफ हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो स्टेला पचीडी है उसका क्या व्यू है अकॉर्डिंग टू द सेकंड पैराग्राफ. सो लेट्स सी. Dr. Stella Picciuti from the Cambridge Judge Business School believes that some of the most fundamental changes are happening as a result of the algorithmication of the jobs that are dependent on the data rather than on production, so-called knowledge economy. अब उन्होंने बोला है कि बहुत सारे फंडामेंटल जो चेंजेस हैं, अब जो जॉब्स जो है वो प्रोडक्शन को छोड़ के जो डाटा के ऊपर जो बेस्ड है, उस जॉब्स में बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो हो रहे हैं. इट इज अ की फैक्टर ड्राइविंग करंट डेवलपमेंट्स इन द वर्क प्लेस. अब ये इट जो है वो नॉलेज इकोनॉमी के लिए रेफर किया गया है. सो इट इज अ की फैक्टर मीन्स जो नॉलेज इकोनॉमी है वो एक की फैक्टर है किसका, जो काम में जो चेंजेस हो रहे हैं करंटली. एंड यही जो है वो जज ने बोला है सो कॉल्ड नॉलेज इकोनॉमी. जो उसी को नॉलेज इकोनॉमी कहते हैं जो जॉब्स प्रोडक्शन के ऊपर नहीं डाटा के ऊपर जो है वो बेस्ड है और उसमें बहुत सारे जो चेंजेस है वो हो रहे हैं. सो दैट इज अ नॉलेज इकोनॉमी. 29th क्वेश्चन. व्हाट डिड पचीदी ऑब्जर्व एट द टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी. अब पचीदी ने क्या ऑब्जर्व किया जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है उनके बारे में. ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 7th पैराग्राफ में गिवन है. पचीदी एंड द कलीग इवन ऑब्जर्व्ड पीपल डेवलपिंग स्ट्रेटजीज to make the algorithm work to their own advantage. We are seeing cases where the workers feed the algorithm with false data to reach their targets. अब उन्होंने ये बताया कि जो लोग हैं वो बहुत सारे स्ट्रैटेजीज को डेवलप कर रहे हैं ताकि वो डेटा को अपने हिसाब से यूज कर सके. इवन वो क्या करते हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वो डाल देते हैं ताकि वो अपना टारगेट्स जो है वो अचीव कर सके. C statement is saying staff making sure that AI produces the results that they want. कि स्टाफ जो है ये श्योर कर रहा है कि AI वही रिजल्ट प्रोड्यूस करे जो स्टाफ को चाहिए. सो इसका जो है आंसर है C. अगर आपको A, B, D या किसी और क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है नहीं ये भी आंसर हो सकता है, तो आप मेरे को कमेंट करके अगर लिखेंगे तो डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू. ऐसे जो है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं बाकी के पॉइंट्स नहीं एक्सप्लेन कर रही. Okay, so if you have any doubt, you can write your comments. 30th question. In his recently published research, Ewan McGregor challenges, shows, highlights, or illustrates. For this question, you need to check out this paragraph. So you need to identify that what was said by Ewan McGregor. Whether he challenges something, whether he shows something, whether he highlights something, or he illustrates something. कहाँ पे उसने ये सब किया है? In recently published research. So to find the answer, let's read this paragraph. His recently published research answers the question of whether automation AI robotics will mean a jobless future. Now from this first line, it is clear that this research is going to answer a question. What is the question? That what would be happen about the job opportunities, jobless future. So let's try to eliminate the answers. Challenges the idea that redundancy is negative thing, shows the profound effect of mass unemployment on society, highlights some difference between past and future job losses,
Last is how changes in the job market be successfully handled. Now you need to cross out the first one even after reading the first line, because we know that it is talking about the jobless future. Let's jump to next paragraph. He adds, if there is going to be change into jobs as a result of AI robotics, then I would like to see the government seeing the opportunity to improve the policy to ensure good job security. Now, from this line, it is clear that this person is going to talk about the methods how job security can be maintained. So definitely the answer is D, because in this paragraph the methods are going to be shown. मैक्रेगा ने बोला है कि अगर जो AI की वजह से या रोबोटिक की वजह से जॉबलेस हो जाते हैं लोग, तो गवर्नमेंट को उसके लिए क्या करनी चाहिए, अपनी पॉलिसीज अच्छी करनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट जॉब जो है वो लोगों को अच्छे से मिल सके. यहाँ पे लिखा है बोल्ड न्यू पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट, फेयर इनकम्स एंड अ थ्राइविंग इकोनॉमी डेमोक्रेसी. So the answer is D. Question 31 to 34 are related to blanks. So these are little bit difficult blanks because the words which are given here as an option, that are not as it is into the paragraph. The synonyms are given. So if you don't know the synonyms, it would be very difficult for you to check out the correct answer. Okay, let's read and check out what is the answer of 31st. Stella Pachidi for Cambridge Judge Business School has been focusing on algorithmification of jobs which rely not on production but on dash. अब इस लाइन का जो मतलब है, इट इज नॉट नेसेसरी टू चेक आउट द एवरी वर्ड. ऐसा नहीं है कि आपको हर एक वर्ड की जो है वो ट्रांसलेशन आपको पता होनी चाहिए, बट येस यू नीड टू चेक आउट द समरी कि उसने पूछा क्या है. अब इस ब्लैंक में दे आर टॉकिंग अबाउट द स्टेला पचीडी. अब उसने जो है प्रोडक्शन के ऊपर सिर्फ फोकस नहीं किया, कोई और चीज भी है. यू हैव टू चेक आउट दैट कि कौन सी और चीज है जिसके ऊपर उसने फोकस किया है, क्योंकि यहाँ पे बट आ गया. सो आपको पता होना चाहिए कि वो कॉन्ट्राडिक्टरी है. और रिलाई नॉट ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को छोड़ के आपको दूसरा जो है वो आंसर निकालना. Check out the first sentence. Dr. Stella Pachidi from Cambridge Judge Business School believes that some of the most fundamental changes are happening as a result of algorithmification of jobs that are dependent on data rather than on production. So आपको पता होना चाहिए कि these are the synonyms. जो उन्होंने पूछा है as it is जो है वो वर्डिंग नहीं है, but yes मीनिंग सेम ही है. उन्होंने बोला है कि डिपेंड होना चाहिए ऑन डेटा rather than, अब वहां पे बट यूज हुआ था, यहाँ पे रादर देन हुआ है ऑन प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन तो हमारा मैच कर गया. व्हाट इज मिसिंग, डेटा. डेटा यहाँ पे आंसर होना चाहिए. अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द सिनोनिम और अदर वर्ड फॉर डेटा. जी इज द करेक्ट आंसर. इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं, डेटा को डेटा भी बोलते हैं. सो 31 का आंसर आ जाएगा जी. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स 32. Managing a telecommunications company, Pachiti observed a growing dash on the recommendations made by AI. अब पचीती ने क्या ऑब्जर्व किया कि किसी चीज में ग्रोथ हो गई है, कोई चीज ग्रो हो गई है, पर कब ग्रो हुई है, जब AI ने रिकमेंडेशंस. तो आपको ये चेकआउट करना है कि AI की रिकमेंडेशंस पे कौन सी चीज जो है वो ग्रो हो गई. इन केसेस लाइक दिस Pachiti believes a short sign view begins to creep into working practices whereby workers learn through the algorithm eyes and become dependent on its instructions. Instructions means recommendations made by AI. तो जब AI ने instructions दी, recommendation किया, तब क्या हो गया कि लोग डिपेंडेंट हो गए. अब इस लाइन का ये मतलब है कि जैसे वर्किंग कंडीशन में सपोज करो रॉबोट्स जो है वो काम में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है. अब लोग जो है रॉबोट्स अपनी आई से सब चेकआउट कर रहे हैं और फिर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि ये करो, वो नहीं करो, ऐसे करो, वैसे करो. तो लोग उनकी इंस्ट्रक्शंस पे डिपेंड हो गए हैं. जब इंस्ट्रक्शंस मिलेगी तभी काम होएगा. सो पचीटी ने ये मॉनिटर किया कि जब एआई की रिकमेंडेशंस हुई तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि लोगों की डिपेंडेंसी जो है वो डिपेंडेंट बन गए हैं, वो इंक्रीज हो गई है, उसमें ग्रोथ हो गई है. अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द अदर वर्ड फॉर डिपेंडेंस एंड दैट इज रिलायंस. रिलायंस मीन्स किसी के ऊपर डिपेंड हो जाना, डिपेंडेंस ऑन समथिंग, दैट इज रिलायंस. सो 32 आंसर इज E. Meanwhile, staff are deterred from experimenting and using their own dash and are therefore prevented from achieving innovation. अब उसके साथ क्या हुआ कि जो स्टाफ है वो एक्सपेरिमेंट करने से रुक गए और अपनी कोई चीज है जो वो अपनी कोई चीज यूज करने में
वो रुक गए, डेटर हो गए, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, इनोवेशन अचीव करने में जो है प्रॉब्लम आने लगी, प्रिवेंटेड फ्रॉम अचीविंग इनोवेशन, इनोवेशन जो है वो अचीव नहीं हो पा रही थी। तो वो कौन सी चीज है कि एक तो एक्सपेरिमेंट रुक गए और लोग अपनी कोई एक चीज यूज करना उन्होंने बंद कर दिया। ऑल्टरनेटिव एक्सप्लोरेशंस वेयर एक्सपेरिमेंटेशंस, अब एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंटेशन ये हमें सिमिलर वर्ड मिल गया है, तो इट मीन्स कि अभी आंसर आने ही वाला है। एंड ह्यूमन इंस्टिंक्ट lead to progress and new ideas are effectively discouraged. न्यू आइडियाज मीन्स इनोवेशन। अब पूरी लाइन का देखो मतलब जो है वो एज इट इज ही लिखा हुआ है, तो कौन सा चीज जो है वो मिसिंग है, दैट इज इंस्टिक्ट। ह्यूमन इंस्टिक्ट मतलब ह्यूमन पैटर्न ऑफ बिहेवियर, या फिर आप बोल सकते हो ह्यूमन रिस्पॉन्स जो है वो टू अ सर्टेन स्टिमुली, वो जो है वो चीज उनकी बंद हो गई। ह्यूमन ने अपना जो है वो दिमाग लड़ाना कम कर दिया और इसके साथ क्या हुआ, इनोवेशन इफेक्ट कर दी। तो 33 का जो आंसर है वो है आंसर सी, इंट्यूशन। इंट्यूशन इज द अनदर वर्ड फॉर इंस्टिक्ट। तो आपको सिनोनिम और एंटोनिम भी आपको पता होने चाहिए, ये भी आपको आने चाहिए टू गेन गुड मार्क्स इन रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशंस व्हिच Pachidi observed, researchers are trying to make AI's decision making process easier to comprehend and to increase users dash with regard to technology। अब Pachidi ने ये भी कई सिचुएशंस में ऑब्जर्व किया कि जो रिसर्चर्स हैं वो ये ट्राई कर रहे हैं कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो अच्छा हो जाए और लोगों की कोई चीज है जिसको वो इंक्रीज कर सके रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी। अब लोगों का क्या है, यूजर्स की कौन सी चीज है जो कि वो इंक्रीज करना चाहते हैं, लेट्स चेक आउट। इट्स सिनेरियोस लाइक दीज दैट मेनी रिसर्चर्स आर वर्किंग टू अवॉइड। Their objective is to make AI technology more trustworthy and transparent so that organizations and individuals understand how AI decisions are made। अब यहाँ पे दो चीजें दी गई हैं, ट्रस्टवर्दी एंड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट हमें गिवन ही है, कॉम्प्रिहेंड, ठीक है, व्हिच इज मिसिंग दैट इज ट्रस्टवर्दी। कॉन्फिडेंस इज द आंसर, एफ इज द आंसर। ट्रस्टवर्दी जो है वो कॉन्फिडेंस का सिनोनिम है, तो उन्होंने बोला है कि यूजर्स का जो कॉन्फिडेंस है विद रिगार्ड टू टेक्नोलॉजी वो चीज उनको इंक्रीज करनी है। यहाँ पे भी सेम ही लिखा हुआ है, देयर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक एआई टेक्नोलॉजी मोर ट्रस्टवर्दी एंड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का हमें सिनोनिम पहले से ही दिया है, तो हम इसका आंसर ट्रांसपेरेंट नहीं उठाएंगे। क्यों ऐसा होना चाहिए, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड हाउ एआई डिसीजंस आर मेड, ताकि उनको पता चल जाए कि ये डिसीजंस कैसे होते हैं, ताकि वो टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जो है उनके ट्रस्टवर्दी हो जाए, वो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज हो जाए। सो 34 का आंसर है एफ। Okay, now we are moving towards question number 35 to 40. These are the last questions and video बहुत ही लंबी चली गई है तो मेरे को जल्दी से सम अप करना पड़ेगा। So let's see कि ये जो questions है ये मैच है। आपको A, B, C 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको इसमें से चूज करना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो स्टेला ने बोली है, कौन सी हमीश ने बोली है और कौन सी जो है मैक्रेगा ने बोली है। Okay, so let's see 35 है, greater levels of automation will not result in lower employment। ये इंफॉर्मेशन हमें 9th और 10th पैराग्राफ में मिल जाएगी, ठीक है। 9th पैराग्राफ में हमें नेम मेंशन है कि ये किसने लिखी है, हमीश ने, और इसकी इंफॉर्मेशन जो है इसकी मैं आपको समरी बता देती हूँ। इसका ये मतलब है कि अगर 100 में से जो है वो 50 जॉब्स पोस्ट करो हमारे रोबोट्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास सिर्फ 50 जॉब्स ही बची हैं, हमारी जो नंबर ऑफ जॉब्स है वो भी तो इंक्रीज करेंगी, ठीक है। नंबर ऑफ जॉब्स इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो इंक्रीज होगी। सो ये 35 जो नंबर है ये हमारा जाता है बी को, क्योंकि ये किसने लिखा है, हमेश ने ये वाली वर्डिंग बोली है कि नंबर ऑफ जॉब्स जो है वो भी इंक्रीज होंगी। Now we are moving towards the next question and that is question number 36. There are several reasons why AI is appealing to the business. बहुत सारे reasons है कि क्यों हमें AI को अपील करना चाहिए for the business. Now this information is given under the 3rd paragraph and it is said by Pachidi. Perfect information as well as to reduce the cost, enhance the productivity. The organizations are attracted towards using the algorithm. अब ये वाली इंफॉर्मेशन जो 36 की है इसका आंसर है ए, रिड्यूस करने के लिए कॉस्ट, प्रोडक्टिविटी एनहांस करने के लिए लोगों को एआई के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा,
for business. AI is potential to transform people's lives as parallels with the major culture shifts which occurred in the previous era. अब उन्होंने बोला है जो AI का इन्फ्लुएंस है लोगों की लाइफ में, लाइफ चेंज करने में, वो उतना ही है जितना कि पिछले कुछ सालों में, कुछ इरास में कल्चर शिफ्ट हुआ है. सो लोगों की जो लाइफ चेंज करने में AI का उतना ही रोल है जितना कि कल्चर जो है, जैसे लोगों ने वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर लिया, उसका जितना शिफ्ट है, उसके ही ये पैरेलल है, उसके ही सिमिलर है. सो हम ये नहीं बोल सकते कि हमारी जो भी लाइफ जो चेंज हुई है वो AI की बदौलत ही हुई है, नहीं, इसमें कल्चर शिफ्ट भी है. सो इफ यू रीड दिस पैराग्राफ, 12th paragraph, then you will check out the same information and it is told by McGregor. नाम जो है यहाँ पे highlighted है. Question 38. It is important to be aware of the range of problems that AI causes. So कौन सा पैराग्राफ ये डिफाइन कर रहा है कि रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि AI कॉज कर रहे हैं उससे हमें अवेयर होना चाहिए, अवेयर होना जरूरी है. सो द 8th पैराग्राफ you will read, then you will check out this information. We need to make sure we fully understand the dilemmas that this new world raises regarding expertise, occupational boundaries and control. So इस लाइन में ये गिवन है कि आपको अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. We need to make sure we fully understand, कि हमें अच्छे से पता होना चाहिए जो भी हमारी कंफ्यूजन है AI के रिगार्डिंग. So 38 का जो आंसर है that is A. Next question is, people are going to follow a less conventional career path than in the past. जो ट्रेडिशनल कैरियर था उसको अब लोग कम जो है वो फॉलो करने लग गए हैं as compared to the past. For this information, we will read the 9th paragraph. The traditional trajectory of full-time education followed by full-time work followed by a pensionized retirement is a thing of the past. कि ये जो चीजें थी ये अब पास्ट की थिंग थी, अब क्या हो गया है, इंस्टेड ही एनविसेज अ मल्टी स्टेज एम्प्लॉयमेंट लाइफ. बहुत सारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल गई हैं थ्रू आउट द लाइफ जो है वो लोग काम कर सकते हैं और मल्टीपल जॉब्स की ऑप्शन भी अवेलेबल है. सो द today's scenario is totally changed from the past and that is information matched with the 39 is given under the B paragraph. 40th question, authorities should take measures to ensure that there will be adequately paid work for everyone. authorities को ये ensure होना पड़ेगा कि सबके लिए paid work available हो. same information is given under the 30th पैराग्राफ. ये मैंने पहले भी समझाया है, इसके लिए पहले भी उन्होंने क्वेश्चन पुट किया था. सो इस पैराग्राफ में उन्होंने ये बोला है कि गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो AI ने हमारे काम ले लिए हैं उसके लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट आई है तो लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज और देनी पड़ेगी. ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को इसको चेकआउट करना पड़ेगा. सो द आंसर ऑफ द 40th क्वेश्चन इज C. I hope these all things are clear to you and 16 जो Cambridge है वो भी clear है. Is there any doubt you can comment me. वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है. अगर आपको चाहिए कि मैं पार्ट्स में बनाऊं लाइक 1 सेक्शन और 2 सेक्शन ही कवर करूं या जो भी आपका व्यू है इस वीडियो को देख के प्लीज राइट इट ऑन द कमेंट सेक्शन. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.